Good morning, class 11. Let's continue our topic of chapter cybersecurity. So, today we are starting our topic private browsing and anonymous browsing. So, what is anonymous browsing? It is a browser that allows the users to view the website without revealing any personal information of the user like their IP address, machine type, location, etc. An anonymous browser let the user access websites anonymously. It can be used as a tool for government, journalists, and everyday security conscious surfers. So these type of browsers are mostly used by the government servants, journalists, and the persons or the users who are security conscious. Okay, so these are the browsers that allow the user to surf over the internet without giving any of their personal information. Even the browser जो ब्राउज़र होता है वो ना तो उनका आईपी एड्रेस लेता है, ना ही उनका मैक एड्रेस कॉपी करता है, कुछ भी कॉपी नहीं करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनोमिनस ब्राउजिंग. अनोमिनस ब्राउजिंग हम किसके थ्रू करते हैं? अनोमिनस ब्राउजर्स के थ्रू. नेक्स्ट इज अबाउट प्राइवेट ब्राउजिंग. सो व्हाट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग? It is a type of browsing where browser opens in incognito mode and though proxy or VPN and does not store cookies about your online activities. Okay, so in private browsing कुछ भी कोई भी cookie नहीं बनती है. ठीक है. So it is also very safe type of browsing. Let's learn about incognito browsing. Opens up a version of the browser that will not track your activity. ठीक है, एक ऐसा वर्जन ओपन होता है ब्राउज़र का जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जाता है. इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इफ़ यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डाटा लाइक बैंक डिटेल्स इनटू द ब्राउज़र as it can minimize the risk of your information being saved to the computer. It can also be used for purpose like to look at surprise gifts for the family without leaving clues, searching for hotel's room for your vacation, filling examination forms, etc. But this information is still visible to your school, university, or organization. You may also get private browsers and search engines like DuckDuckGo. Okay, so there are some private browsers also that provide you the facility of browsing anything over the internet without giving any of the information. और कोई भी कुकी नहीं बनेगी. मीन्स आप कुछ भी सर्च करते हैं, इवन इफ़ यू आर एंटरिंग योर बैंक डिटेल्स और यू आर फिलिंग एनी फॉर्म, यू आर सर्चिंग फॉर द होटल्स रूम, कोई भी कैसी भी कुकी नहीं बनेगी, कोई भी सर्च हिस्ट्री नहीं रहेगी. नेक्स्ट इज अबाउट द प्रॉक्सी वर्क. Proxy works by acting as a middleman between your computer and the website you want to access. Okay, so it is act as a mediator between the computer and the website that you want to access. Now the tracking website will get the IP address and the information that belongs to the proxy site. You are effectively getting the same content from the another source without it getting too known as browsing detail. Okay, proxy हम कभी कभी प्रॉक्सी कंप्यूटर्स भी मेंशन कर देते हैं. मीन्स इट इज़ अ मीडिएटर बिटवीन. अब यहाँ पे सुन लीजिए प्रॉक्सी का काम क्या होता है. प्रॉक्सी एक मीडिएटर की तरह काम करता है. तो जब हम वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो जो आईपी एड्रेस जाता है या बाकी इंफॉर्मेशन जाती है वो प्रॉक्सी सिस्टम की जाएंगी, आपके सिस्टम की नहीं जाएंगी. बट जो भी कंटेंट है वो आपको डिलीवर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज़ VPN. So it is a method used to add security and privacy to the private and the public networks. So it is used for security of over the networks like Wi-Fi, hotspots and the internet. Okay, सिस्टम को प्राइवेसी मिल ही रही है. इवन जो हमारा VPN है वो आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को सिक्योरिटी दे रहा है. VPN मोर ऑफन यूज्ड बाय कॉरपोरेशंस टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा. वर्चुअल private network were originally meant for business employees working. Okay, so VPN is not only used over a computer. ये हम पूरे नेटवर्क पे यूज़ करते हैं. जब कोई भी चीज़ हम नेटवर्क पे यूज़ करें तो मेनली इट इज़ यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट confidentiality of information. It means
Confidentiality of information ensures that only authorized user get access to the sensitive and the protected data. जिससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन है, जिसकी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो किसको किस बेसिस पे देनी है, ठीक है। मीन्स मान लीजिए हमारे पास कुछ रजिस्टर्स ऐसे मेंटेन होते हैं बीइंग अ टीचर, जिसमें कुछ डाटा ऐसा होता है जो हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं, कुछ डाटा सिर्फ ऑफिस स्टाफ के लिए होता है, कुछ डाटा ऐसा होता है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है। मीन्स हम किस इंसान को या किस डिपार्टमेंट को कितनी अथॉरिटी दे रहे हैं, कितनी एसेसिबिलिटी दे रहे हैं कि वो उस चीज़ को देख सकें। सो लेट्स रीड अबाउट दिस। इंटरनेट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। मोस्टली द साइट्स यू विजिट, द थिंग्स यू सर्च ऑन इट, द पोस्ट यू पुट on social networking sites are all visible to the public, but there must be some information like your credit history, your bank details, your mail, etc., which you do not want to make public. That is, you want to keep this information confidential. Okay, similarly on a computer and a private network, you would certainly want the crucial information is protected and is not publicly visible. Confidentiality of information ensures that only authorized user get access to the sensitive and the protective data. So there are some data that you want not to be get publicly accessed by each and every person. So ऐसे information को हम क्या करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं और सिर्फ वही लोग देखते हैं जिनके पास इनको देखने के लिए एक्सेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज practicing to ensure confidentiality of information. Okay, cannot avoid these as these are modern age tools, but you surely can follow certain practices to safeguard your data and ensure its confidentiality. There are some few points that you have to ensure to make your data confidential or private. First one is use firewall wherever possible. हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, फायरवॉल यूज़ करनी चाहिए। ओके, सो नाउ कम व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, ठीक है, जो मॉनिटर करता है कि कौन सी साइट को कैसे एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, एंड इट मॉनिटर ऑल द कम्युनिकेशन एंड द ट्रैप्स। पहले जो इतने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, इट वॉज नॉट श्योर दैट उसमें फायरवॉल इंस्टॉल्ड होगी या नहीं होगी, बट अब जितने भी अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उन सब में फायरवॉल पहले से प्री इंस्टॉल है, like such as the Windows firewall. This only block the suspect incoming communication, leaving complete open access to the internet from the machine. Next is control browsers setting to block tracking. हमें क्या करना है, we have to ब्राउज़र की जो सेटिंग्स हैं उन्हें कंट्रोल करना है सो दैट कि उसमें ट्रैकिंग ना हो पाए। So to minimize these threat, we can just turn off the default browser settings to exclude cookies, especially third-party cookies. Okay, since they can be used to build up the detailed profile of your surfing pattern over the time. Next, third one is browse privately wherever possible. Instead of browsing publicly, हमको private browsers यूज़ करने चाहिए या फिर anonymous browsers यूज़ करने चाहिए। Okay, next, be careful while posting on internet. Whenever you post anything over the internet, be careful, क्योंकि जो भी हम इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं आफ्टर डिलीटिंग भी वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे रहता है, किसी न किसी को दिखता है। Second thing, we should not post our crucial information like our personal details such as the address, mobile numbers, bank details, credit card details, etc. on public internet sites. नेक्स्ट इज़ इंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस भी साइट पे आप एंटर कर रहे हैं क्या वो साइट सेफ है। लेट्स हैव सम थिंग्स। टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र ऑन योर ओन. Do not click on the link that take its website. Do not cut or copy the link of the website and paste it. Type the URL on your own in the address bar of the वेब ब्राउज़र। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि कहीं से भी URL को कॉपी पेस्ट ना करें, इवन जो आपके पास सजेशंस आते हैं उसमें से भी URL ना उठाएं, डायरेक्टली आप URL को टाइप करें और फिर उसको
एंटर प्रेस करें। इंश्योर दैट द एड्रेस contains HTTP and a padlock sign. ओके, HTTP वहाँ पे मेंशन ज़रूर होना चाहिए. When the websites get loaded, before you start typing any information, ensure that the website address or save site URL starts with HTTP and do not starts with. Okay, here's a small example हाउ द वेबसाइट मस्ट बी स्टार्टेड. जब आप HTTP लिखेंगे तो जब आपके पास आ रहा है HTTPS, दैट मीन्स इट इज़ सेफ साइट. बट व्हेन इट इज़ रिटन ओनली HTTP, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेफ साइट. तो जब भी URL लिखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपके पास आ रहा है उसमें HTTPS लिखेंगे तो इट इज़ अ सिक्योर कनेक्शन. Next is carefully handle the emails. While opening an email, make sure that you know the sender. जब भी आप कोई ईमेल ओपन कर रहे हैं और उस पर वर्क करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि वो किस सेंडर ने भेजा और उस सेंडर को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं. इवन इफ़ यू ओपन द ईमेल मैसेज बाय एक्सीडेंट, मेक श्योर डू नॉट ओपन द अटैचमेंट. अगर उस मेल में कोई भी अटैचमेंट है तो उसे ओपन ना करें और उसको डिलीट कर दें. नेक्स्ट इज avoid using public computers and do not give sensitive information on wireless networks. आपके वाईफाईज आ जाएंगे. ओके, ऐसे कनेक्शंस पे जो भी आपके वाईफाई कनेक्शन है, जब तक वो सिक्योर या फिर प्राइवेट ना हो तब तक उन पे अपनी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप पुट ना करें. सेकेंड वन इज़ अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स. जब आप साइबर कैफ़े जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज़ करना कम से कम करें. अगर वहाँ कंप्यूटर्स को यूज़ कर भी रहे हैं तो उसमें कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी पासवर्ड सेव ना करें. ओके, नेक्स्ट कम द जस्ट अ मिनट. Next come the cyber crime. So any criminal offense that is facilitated by or involving the use of electronic communication or information system, including any electronic device, computer or the internet, is referred to the cyber crime. So the crime that are over the electronic communication, electronic devices or over the internet is known as cyber crime. Next is cyber trolls. Okay, cyber troll refers to a person who purposely posting of opposing, sarcastic, demeaning or insulting comment about something or someone with an aim of targeting person online. ओके, साइबर ट्रॉल एंड बुलिंग आपका होता है मीन्स जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या किसी पब्लिक पोस्ट पे उल्टे सीधे कमेंट्स करना, इंसल्ट्स करना, उसका जो मेन एम होता है वो सिर्फ ये होता है कि दूसरे पर्सन को टारगेट करना है, उसकी इंसल्ट करनी है. द प्रोवोकेटिव मैसेजेस पोस्टेड दिस वे इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉल. ठीक है, ट्रॉल करना किसी भी चीज़ को जब हम काफ़ी हद तक आगे फॉरवर्ड करते हैं इन नेगेटिव वेज, देन इट इज़ नोन एज troll. So the word troll can refer to a person who is doing it, and it may refers to the derogatory comment posted by a troll. So trolling is a cyber crime and is closely related to the cyberbullying. In fact, it is a form of cyberbullying. बुलिंग आप सबको पता है, किसी को छेड़ना, किसी को परेशान करना इज़ नोन एज बुलिंग. एंड साइबर बुलिंग इज़ मीन्स ऑनलाइन व्हेन यू आर डूइंग दिस. सो आप ऑनलाइन ये सब काम कैसे कर सकते हैं, किसी के पोस्ट पे कमेंट करके, किसी बात को इतना ट्रॉल कर दिया कि हर सोशल मीडिया पे उसको, ठीक है, अलग अलग मीम्स बना दिया आपने, उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं, इंसल्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, दैन इट इज़ नोन एज साइबर बुलिंग. हियर इज साइबर बुलिंग: harassing, demeaning, embarrassing, defaming or intimidating someone using modern technologies like internet, cell phones, instant messengers, social networks, etc. is called cyberbullying. As I told you, it is cyberbullying जब आप over the internet with the help of the help of your any network device or any electronic device, you are harming someone
or you are harassing, embarrassing them, sorry, okay, demeaning their thoughts, then all this comes under cyberbullying. Same as cyberbullying, we are having cyber stalking, means following someone with the help of online messages and email. ऑफलाइन स्टॉकिंग क्या होता है? जब हम किसी को फॉलो करते हैं, किसी का पीछा करते हैं, ठीक है, किसी की हर एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं, दैट इज़ ऑफलाइन स्टॉकिंग. डूइंग द सेम ओवर द इंटरनेट, देन इट इज़ नोन एज ऑनलाइन स्टॉकिंग. जब आप ध्यान रखते हो किसने क्या, और किसी को उल्टे सीधे मैसेजेस करना, बार बार मेल करना, परेशान करना, हर सोशल मीडिया पे फॉलो करना, उनकी एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना, दिस इज़ नोन एज साइबर स्टॉकिंग. नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग rumors. Spreading rumors online. People often think that they make a fake profile with some different name and do anything online and will not be caught. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि झूठी मूठी प्रोफाइल बना के दूसरा नाम लिख के किसी को परेशान करेंगे या कुछ भी करेंगे, कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे. दो सच फेक प्रोफाइल्स पीपल समटाइम इंडल्ज इन पोस्टिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसके थ्रू फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती हैं, उल्टे सीधे पोस्ट आते हैं, सोशल मीडियाज़ पे कमेंट्स आते हैं दूसरे लोगों की पोस्ट पे जो दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं. ओके, रिलीजियस इशू ऐसी ही पोस्ट प्रोफाइल से आते हैं जो मोस्टली फेक होती हैं. सो स्प्रेडिंग र्यूमर्स ऑनलाइन इज़ अ साइबर क्राइम. जो आप फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, ठीक है, र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, उल्टे सीधे पोस्ट किए जाते हैं, they also included as a cyber crime and is a punishable offense as per the Information Technology Act of India. Like if there are cyber crimes, अगर गुनाह है तो उनके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट भी होगी. So if there are cyber crime, there is cyber law also in India. So cyber law is a law that is made to reduce the cyber crimes over the internet. So as per the Information Technology of India, publishing circulation of rumors, especially hurting religious sentiments, is a cyber crime and it may invite a fine with imprisonment extendable up to 3 years. Next we are having online fraud. So what is online fraud? Fraud committed using the internet is called online fraud. All the words are very much familiar to you. आप सब ने ये सब कभी ना कभी पढ़े होंगे, नहीं तो अपने सिविक्स में ज़रूर पढ़े होंगे. सो जो भी काम हम ऑफलाइन होता था अब वो सब काम ऑनलाइन भी हो गया है. जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो गई है कि आप अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन स्टोर करने रखे हैं, सारे काम ऑनलाइन होते हैं, इवन द इन्विटेशंस भी ऑनलाइन जा रहे हैं, ठीक है. यू कैन वॉच अ मूवी विद अ फ्रेंड ऑनलाइन, यू कैन हैव अ ग्रुप चैट्स ओवर इंटरनेट. तो जो उल्टे काम होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, स्टॉकिंग्स होती हैं, रूमर्स होते हैं, ये सब भी ऑनलाइन होने लगे हैं. जब ऑनलाइन ये सब काम होंगे तो इनके लिए ऑनलाइन लॉज भी बने हैं, ठीक. सो ऑनलाइन fraud that is committed using the internet is called online fraud. Online fraud may occur in many forms such as non-delivered goods, stealing information, non-existent companies, fraudulent payment, etc. ठीक है. मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, आप तक डिलीवर नहीं हुई एंड यू पे दी अमाउंट. ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं, सिर्फ एक अकाउंट नंबर था जिसमें आपने अपना अमाउंट ट्रांसफ़र किया, वो चीज़ डिलीवर्ड ही नहीं हुई, वो साइट सेफ़ नहीं थी, आपने ये चीज़ पहले चेक नहीं की. ओके, इट ऑल्सो कम अंडर अ ऑनलाइन फ्रॉड. सेकेंड थिंग इज स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन. जब किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन पुट की है एंड यू स्टोल दैट, तो वो भी क्या है, आपका ऑनलाइन फ्रॉड भी आता है. नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज़, वो कंपनीज़ जो है ही नहीं बट बहुत सारे दावे और वादे ऑनलाइन कर रही हैं. फ्रॉडलेंट पेमेंट्स, बहुत से ऐसी पेमेंट्स के लिए ऑप्शंस होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चुरा लेते हैं, बीच में से पैसा भी गायब हो जाता है, बट कंपनीज एग्जिस्ट.
नहीं कर सकते. सो दे ऑल अंडरकम ऑनलाइन फ्रॉड्स. सो द मेजर्स टू स्टॉप दिस फ्रॉड में इंक्लूड, ये फ्रॉड्स कैसे रोक सकते हैं, a monitoring official body that ensures the sanctity of e-commerce companies and deliver of goods and services as promised. ठीक है, ऑफिशियल बॉडीज़ हों जो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो इतनी भी ई कॉमर्स कंपनी है वो टाइम से या फिर वो डिलीवरी जो भी प्रॉमिस कर रही हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ कि हम ये गुड्स और ये सर्विसेज देंगे वो दें. ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल्स होने चाहिए जो इस चीज़ पे ध्यान रखें. सेकंड, स्टॉप सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय द ई कॉमर्स साइट एंड पेमेंट गेटवे टू प्रिवेंट स्टीलिंग एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन. सेकंड थिंग, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए. ओके, सो दैट कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं या जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो स्टील ना हो. ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स ऑन द सेलिंग ऑफ यूजर्स डाटा टू थर्ड पार्टी, इसके लिए भी सेफगार्ड होना चाहिए. इवन गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कोई भी यूज़र की ऑन द सेलिंग ऑफ यूजर्स डाटा टू थर्ड पार्टीज. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन थेफ्ट. इसमें हमारे पास टॉपिक आता है फिशिंग, दैट वी आर गोइंग टू कवर टुमारो. So within day or two we are going to finish with this chapter, and later I am going to provide you the multiple choice question of this chapter and very short and false question answers. Okay, thank you students.